Okay, I'm visible now. Yes, sir. Great. So will you please switch on your camera so I can see that I'm taking class of humans. Yes, sir. Only one. Okay, two. Shubham. Okay, let's start. I don't want to waste any more time. So welcome to the class. Today we're going to take a very important but little bit different class for you. That is Gym Fitness Center of Business Establishment. And if you want to open physical business or online business, you need to know the fundamentals of the business. So this class is mandate for your syllabus. Like you need to know the basics of the establishment. And so let's start. We are having a little bit out of the syllabus बिल्कुल thing. सर This is not कुछ 100% बोलना था related. सर कहने से This is not 100% related to exercise science, physiology, or nutrition. However, without सर कुछ this, बोल सकते हैं सर अभी yeah, tell me. अ, सर वो जो पिछले जो क्लास का जो था वीडियो अभी तक सर वो अभी हम लोग का मैं वो देखिए आप आप में लोग का नहीं आया क्लास है खत्म हो रहा है. So I will upload all the due things. Don't worry. Before the exam, you will get all the study materials, videos, and everything. You will be having time, ओके सर plenty of time to read and to see the videos and understand. And I'll schedule your demo exam also, assessment also. So don't worry about the study materials. I'll give everything. Let us finish this class. Okay. So today we'll talk about gym and fitness establishment, that is business and directly related to any profession. Ultimately हम लोगों को कुछ भी हम लोग स्किल अगर सीख रहे हैं, उस सीखने के बाद उसको काम पे लगाना है. अगर हम लोग उसको काम पे नहीं लगाते हैं तो वो स्किल नॉलेज जो भी हम लोगों ने सीखा है, टाइम इन्वेस्ट किया, पैसा इन्वेस्ट किया, वो बेकार हो जाएगा. तो हम लोग उसको ना वेस्ट करके कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा आज डिस्कस करेंगे. आर यू रेडी फॉर दिस? Yes, sir. Yes, यस. sir. Yes, sir. ओके, ग्रेट. सो पहले ही जो यहाँ पे चीज है, वो पहला आप देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है नेम. नेम. सो if you want to open an online personal training business or offline personal training business, first thing जो आपको डिसाइड करना है वो आपके बिजनेस का नाम है. तो ये सिलेक्शन ऑफ द नेम, जो आप नाम चॉइस करेंगे, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है. यस सर सर मेरा एक क्वेश्चन था हाँ, बोलो. क्वेश्चन बोलो. मोहम्मद का वीडियो अटक गया है, क्या हुआ? वैसे ही बैठे हो? मैं सोचा वीडियो अटक गया, वैसे ही गायब हो गया. चलो, कोई नहीं. सो पहला पार्ट जो आता है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेम है. नाम हम लोग कोई भी बिजनेस का सोच सकते हैं. मैं गोल्ड जिम सकता हूँ, एनी टाइम फिटनेस सोच सकता हूँ, कुछ भी सोच सकता हूँ, बट वो सोचने तक लिमिटेड है. आई कैन नॉट टेक दैट नेम because all those names were already existing in the market. They are all copyrighted. Copyrighted means it's been registered through intellectual property of India, and you cannot take that name, you cannot use those logos. For that you should go to this website. This is ipiindia.nic.in. This is called intellectual property of India. There
you have a public search option. In that public search option, you put your desired name. And in the subsection, you have to put 44 or 42. That is identification number of like sports related thing, sports, wellness, fitness, and health related thing. The code is 42 or 44. So we put the, this 42 and 44 and put the name and search in public search section of ipiindia.nic.in. We'll be able to see all the names which has been already registered. So if you are having the similar name, you cannot progress with that name. Like suppose this is Kinley company, Kinley soda. You want to, give your product name to Kinley soda. You cannot take it because it's already been taken and it is registered. So if you are thinking fit to fine, fitness one, fitness to life, life the fitness, whatever you're thinking, you have to search it first that if it is already existing, that you cannot take the name. Okay. And another thing is you can go to the website of Ministry of Corporate Affairs. That is called MCI, MCI India, Ministry of Corporate Affairs. वहां पे जाके you go to the public search section, put the name, what you are thinking, and see if it is already there, it will show. अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो वो नेम आप नहीं ले सकते हो. ठीक है. Other things you can do ISO certifications, you can register your domain name. This is a very important part. Whatever business you want to start, suppose you want to start an online personal training, yoga, or online, fitness training, or you want to open your own gym or fitness center. So before you open, nowadays, what you have to do, you have to take the website domain. Like www.nifsasia.com is our website domain, and it is very old domain, like it is almost 14 years old. So the domain name, whatever you're thinking, you should purchase it from any, domain seller. The cost of the domain is very less. It is like starts from 200 to 1000 rupees. So you can take the domain name before anybody takes, because what you are thinking today, आज जो आप सोच रहे हो वो कोई ना कोई बंदा वो नाम सोच रहा है. So उससे पहले कि वो अपना वेबसाइट आपके सोच के नाम से बना दे, you take the website. The best practice, if you want to develop a business in India, you have to take .in, like whatever .in. You want to make the business globally, like in abroad also, your target population is in abroad also, then you take the domain .com. .com is usually costlier than .in domains. So you go to the GoDaddy.com or like similar BigRock.com, GoDaddy.com. You search for the domain name, you see the price, and you just purchase the domain for 1 or 2 years. So just keep the domain in your hand before somebody else takes your domain. Now, before you start any kind of business, you need money. You need money. Yes or no? I think you need money. Yes, sir. Yes, So sir. zero money, it is Yes, very sir. difficult to start any business, any startup. So you need money. So you have to keep some documentation ready with you, like Aadhaar card, driving license, or passport. PAN card is mandatory. You should have a bank book, like government undertaking bank. Residential, proof like electric bill, BSNL bill in your name or in your father's name or mother's name. And a photo and regular bank account should be maintained every time, because you need to apply for a loan. So when you apply for a loan, you need to undergo lots of documentation. So these are the basic documents which is required. Now, if you are thinking that, yes, I want to apply for a bank loan, then you need to have little bit more documentations, like your
IT return. It is very important that you should have at least 2 years of IT returns, income tax return. Now you'll say कि सर इनकम ही नहीं है तो टैक्स कहाँ से दूं और उसका रिटर्न कहाँ से भरूं? तो ये दिस इज राइट, यू आर 100% राइट, बट थिंग इज गवर्नमेंट इंडिया ऐसा रूल है उनका कि अभी 5 लाख तक तो आपको कोई टैक्स देना नहीं है अगर आपका इनकम 5 लाख तक है। बट क्या करना है कि आपका इनकम 4 लाख या 4.5 लाख सालाना है, ईयरली है, तो उसका एक प्रूफ के लिए सिर्फ आप एक इनकम टैक्स रिटर्न, जीरो रिटर्न फाइल करेंगे। जीरो मतलब आपको कोई पैसा देना नहीं है गवर्नमेंट को, बट यू डिक्लेयर दैट माई इनकम इज लाइक इन बॉर्डर लाइन, 4 लाख है मेरा इनकम। सो सर अब जो 4 लाख 5 लाख बोल रहे हैं, ये महीने का या ईयरली? पहले 3.5 लाख था। मतलब महीने का या ईयर में? ईयर ईयर, महीने का नहीं है। ओ अच्छा। अच्छा। ईयरली बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। महीने का नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा महीने का अच्छा। अगर तुम्हारा 4.5 लाख है तो बैंक तुम्हारे पास आके लोन देके जाएगा, डोंट वरी। अगर ईयरली 4.5 लाख 5 लाख मैं बोल रहा हूँ यूजुअली, बिकॉज शायद आप लोगों का कम है या ज्यादा है, आई डोंट नो, बट एक बेसिक इनकम टैक्स फाइल जहाँ पे आपको पे कुछ नहीं करना है गवर्नमेंट को, बट जस्ट रिटर्न करना है कि आपका इतना इनकम है, बस। सो बैंक देखता है कि आप जो पैसा लेंगे वो आप रिटर्न कर पाएंगे कि नहीं। अगर आपके यहाँ जीरो इनकम है तो उसका मतलब आप इनकम नहीं, मतलब रिटर्न नहीं कर पाएंगे, तो बैंक आपको लोन नहीं देगा। तो ये 2 साल का मिनिमम क्रेडेंशियल, जहां पे आपका 2 साल का आईटी फाइल आप रेडी करके रखो। कोई भी प्रोफेशनल से अगर जीरो फाइलिंग कराते हो, वो 500 रुपया लेता है। जनरल चार्ज उनका है 500 रुपया लेता है, नॉर्मल जो लोग आईटी फाइल बनाते हैं। सो वो रेडी करके रखना। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कोई लोन के लिए अप्लाई करोगे तो पी टैक्स चाहिए होता है। पी टैक्स क्या होता है? इट इज प्रोफेशनल टैक्स। आप जो इनकम टैक्स देते हो आईटी, वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हो, यू गिव इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड द प्रोफेशनल प्रूफ दैट यू आर इनटू ए प्रोफेशन लाइक a fitness trainer or dietitian or a yoga trainer, the proof comes from the state government like West Bengal government or whichever state you are staying at, and that documentation is called professional tax, P tax. That is anywhere 500 rupees per year for a basic level professionals like trainers. So many people, they don't know about this thing, but you should know, because anywhere like coming year or next year you may apply for a professional loan to develop some business along with your job. So professional tax return करने के लिए you have to just go to the wbptax.gov.in. That is the website address, I think. And otherwise you can search in Google WBP tax. Make your profile how we have made your profile in Facebook. Make your profile, put PAN card number and pay 500 rupees. It will generate one certificate for a whole year that you are into a profession. So bank will ask for P tax and IT file of last 2 years, last 2 साल का मांगेगा। Another thing is very important that you maintain your CIBIL score, CIBIL, CIBIL score. If you go to your GPay account, you will be able to see that free CIBIL score in your Google Pay, also in your Phone Pay. CIBIL score. So what is CIBIL score? It's an private organization. CIBIL is Credit Information Bureau India Limited, CIBIL. So it maintains the bad credits, means whatever loan you have taken in your lifetime and linked to your PAN card, if you are defaulted, means कि अगर कोई आपने EMI टाइम पे नहीं दिया है या आप लोन को नहीं चुकाए हो, तो यू विल बी मार्क्ड एज ए डिफॉल्टर। सो ये स्कोर एनीवेयर स्टार्ट्स फ्रॉम 300 to 900, 300 से 900, 750 अगर आपका स्कोर है, इट्स ए हैंडसम स्कोर। उससे नीचे जो अगर आपका है तो बैंक लोन नहीं देगा। दैट मीन्स आपने पहले कभी भी लोन लिया है और उसमें डिफॉल्ट किया है, आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया है या पूरा पैसा मार दिया। सो ऑलवेज
मेंटेन योर सिविल स्कोर एंड डू नॉट कीप एनी बैड डेट। इसका मतलब कोई अगर आपने मोबाइल फोन लिया है, बाइक लिया है और उसका ईएमआई अगर टाइम पे पेमेंट नहीं किया है तो आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा और बाद में कोई बैंक आपको लोन देगा नहीं जब आपको रियली जरूरत होगा। तो अपने शौक के लिए जो बाइक थोड़ा फैंसी, थोड़ा आईफोन लेके घूमूं, ये सब चीज करने के लिए आप लोन मत लीजिए। अगर आपका औकात नहीं है कि आप पूरा कैश से फोन खरीद पाओ या बाइक खरीद पाओ या लोन चुका पाओ ऑन टाइम, आपको खरीदना नहीं चाहिए। ये एक रूल है जो वॉरेन बफेट का है, जो बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, आपको पता है। तो अगर सीधी बात तो यह है कि अगर औकात नहीं है तो खरीदो मत, जब औकात होगा तब लेना। अगर चुकाने का पैसा नहीं है तो अभी बहुत जगह पे लालच देगा, बहुत सारे फिनेंस कंपनीज एंड नॉन बैंकिंग फिनेंस कंपनीज है, वो लोग लोन दे देता है बहुत इजीली, और फिर उसके बाद आपका सिबिल में वो हिट कर देता है। अगर आप एक सिंगल या दो ईएमआई नहीं पेमेंट कर पाए टाइम पे तो सिबिल स्कोर आपका बिलो 750 चला जाएगा, और बिलो 750 जाएगा तो आपको लोन लेने में नेक्स्ट टाइम बहुत तकलीफ होगा। और नो बिजनेस, इवन अंबानी अदानी, द रिचेस्ट पीपल of India and richest people of Asia, they are also having loans of 1,000 crores and 1,000 crore. That means when you build some business, you need to take loan and you have to successfully run the business and return the loan amount to the bank. अगर आपने रिटर्न किया तो नेक्स्ट टाइम अगर फिर आप लोन लेते हैं, यू टेक बिग अमाउंट ऑफ लोन। सो दैट इज द रूल। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि अपना सिबिल स्कोर जो है वो हमेशा क्लियर रखो। So before starting your online or offline business, you have to decide your budget. कितना बजट से शुरू करूंगा? 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़? क्योंकि बजट का कोई लिमिट है नहीं। इफ यू जस्ट वांट टू ओपन एन ऑनलाइन बिजनेस, सिर्फ एक ऑनलाइन बिजनेस अगर आप करना चाहते हो, पर्सनल ट्रेनिंग जो आप इंडिया में एंड अब्रॉड में क्लाइंट्स का ट्रांसफॉर्मेशन कराओगे, तो उसके लिए जो मिनिमल चीजें हैं, उसके लिए मिनिमम चीजें हैं, एक फोन चाहिए, हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, और आपको मार्केटिंग आना चाहिए सोशल मीडिया में। अभी मार्केटिंग सोशल मीडिया में दो तरीके का होता है, पेड मार्केटिंग है, अनपेड मार्केटिंग है। अगर अनपेड मार्केटिंग है तो आपको वायरल वीडियोस या वायरल कोई डॉक्यूमेंट्रीज बनाना है। जब तक आप वायरल नहीं होंगे तब तक आपका मार्केटिंग होगा नहीं। तो दूसरा उपाय है कि आप पेड प्रमोशन करो सोशल मीडिया में, स्पेशली इनिशियली इन यूट्यूब, आपका इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में। थोड़ा थोड़ा बजट रखो, 200 300 400 रुपया, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा ये सारे चीज। फेसबुक में खुद सिखाता है फेसबुक का कि फेसबुक को कैसे मार्केटिंग करना है। अभी मेटा है, फेसबुक की जगह पे मेटा यूज होता है। मेटा इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये तीनों चीजों को लेके है। सो यू नीड टू लर्न, बिकॉज जब आप बेसिक लेवल पे कोई बिजनेस शुरू करते हो तब कोई हाई फाई इन्वेस्टमेंट करके कोई एजेंसी या कोई कंपनी को आपने रखा तो उसका बजट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो व्हेन यू स्टार्ट बेसिकली, यू आपको छोटा छोटा चीजें करके स्टार्ट करना है। तो अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखते हो तो यू कैन गो टू यूडेमी, और यूडेमी लाइक एनी course provider, you can learn online, you pay 200 300 rupees, you learn online how to market in social media. Okay, always make a project report, don't go blindly। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ अपने टॉपिक के ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर बिजनेस करते हो या करना सोच रहे हो। सो अगर मेरा बिजनेस, मैं सोचा कि मैं ऑनलाइन न्यूट्रिशन या ट्रांसफॉर्मेशन का करूंगा, सो उसका प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपने चैट जीपीटी 4 या चैट जीपीटी 3.5, इसमें सारे आप पॉइंट्स डालो और चैट जीपीटी को बोलो कि बना दे, तो इट विल मेक योर प्रोजेक्ट फाइल। उस प्रोजेक्ट फाइल को आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ले लो, उसको प्रिंट करो, और वो फनेल के हिसाब से ही आपको चलना है। सो प्रोजेक्ट प्लान इज इंपॉर्टेंट वॉट एवर बिजनेस यू आर गोइंग टू डू। आने वाले 5 साल में, 5 इयर्स में आप क्या करोगे, व्हाट यू वांट टू डू, उसका एक प्रोजेक्ट प्लान होना चाहिए। अरे अभी तो मैं जवान हूँ, 20 साल उम्र है, 24 साल उम्र है, उम्र देखते देखते चला जाएगा।
बट पैसा नहीं आएगा। पैसा आने के लिए यू हैव टू मेक ए प्रोजेक्ट कि इस साल मेरा पूरा साल का इनकम था 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया। नेक्स्ट ईयर कम से कम मुझे इनकम करना है 8 लाख। उसके बाद मुझे इनकम करना है 12 लाख। उसके बाद 20 लाख, 25 लाख, ऐसे करके आपको प्रोग्रेस पूरे साल के आने वाले 5 इयर्स में आपको कितना पैसा कमाना है, क्या करना है, वो सारे प्रोजेक्ट रेडी करना है। अभी नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ऑनलाइन करने जाते हो, कुछ सोशल मीडिया प्रमोशन करने जाते हो, तो आपको एक स्टूडियो चाहिए। स्टूडियो मतलब एक छोटा सा रूम चाहिए जहां पे आप 2-3 लाइट्स लगाओ, एक टेबल हो, एक चेयर हो, पीछे एक बैकग्राउंड हो, सामने एक अच्छा कैमरा हो जिस कैमरे से आप वीडियो उठाओ, और फिर उस कैमरे से जो वीडियो निकला उसको आप एडिटिंग कर पाओ। एडिटिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। तो आप बेसिक सॉफ्टवेयर जो है वो कैनवा से शुरू कीजिए, CANVA। कैनवा में फ्री वर्जन है, वहां से बेसिक आप एडिटिंग करना सीखें। बाकी फिल्मोरा है, फिल्मोरा में भी आप कर सकते हैं। बेसिक जो फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं उसको आप लर्न कीजिए कि वीडियोस एडिटिंग कैसे करना है, रील्स कैसे बनाना है, और कोई आप इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हो तो उसको कैसे एडिट करना है, क्योंकि पहले पहले आपके पास टीम जो है वो नहीं रहेगा बनाने के लिए। सर उसमें कोई वाटर वीडियो मार्क आता बनाना है, है? खुद को ही रिकॉर्ड करना है, खुद को ही एडिट करना है, और खुद को ही पोस्ट करना है, और ऑप्टिमाइज भी करना है। तो ये सारे बेसिक लेवल की चीजें जो है वो आपको सीखना है, अलोंग विथ जो भी आपका नॉलेज एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, एक्सरसाइज साइंस के साथ है। अगर वो इसके साथ एमलगमेंट नहीं हुआ तो आपका ग्रोथ जो है वो स्टक हो जाएगा। आई थिंक आई एम क्लियर अबाउट द मार्केटिंग पार्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये जो तो आप मार्केटिंग का पार्ट बोले। हेलो हाँ बोलो। सर। सर पूछ रहे ये मार्केटिंग की बोले जो आप कि कैनवा उसके बाद फिल्म हो रहा, ये सब ऐप से एडिट करके अगर वीडियो छोड़ेंगे हम लोग अपना मतलब एक्सरसाइज का, तो इसमें वाटरमार्क आएगा तो ऑनलाइन में छोड़ पाएंगे क्या ये सब वीडियो? इन शॉट का रिमूव आता आता है। है ऑटो। कैनवा में वाटरमार्क नहीं आएगा, इन शॉट में आएगा। कैनवा में सम फीचर्स विल बी रेस्ट्रिक्टेड। कैनवा में आपका वो नहीं आता है, वाटरमार्क नहीं आता है। ठीक है। आप उसमें ग्राफिक जो है वो डेवलपमेंट करना सीखे। इट इज वेरी बेसिक, एंड इफ यू लर्न इट afterwards you can purchase, it is only 4,000 rupees for a whole year, Canva. And it is also like integrated with AI technology right now, artificial intelligence technology. It's a very good online module for you. Every amateur graphic designers, they use Canva. Amateur I'm talking about, not professionals. When you be professional, then you have to use Adobe Photoshop, or Adobe Lightning projects, Adobe video editors, those things. And if you go above that, you have to use video editor. It's called Vinci. Vinci is the master video editor. Those things you can use, but afterwards. But start with basics. So whatever you want to do, suppose you want to buy a mirrorless camera. Mirrorless camera is for video recording, and with mirror cameras are for photo shot. You want to buy some lenses, camera stand, some lapel, wireless lapel, some lights, diffusers. So if you start with the basic, it will cost around anywhere between 1 lakh to 1.5 lakhs. सो इतना इन्वेस्टमेंट तो मिनिमम जरूरी होगा। तो पेरेंट्स को बोल सकते हैं, अगर पेरेंट्स को यकीन है आपके ऊपर तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। फैमिली, फ्रेंड्स, ये पार्टनर्स, ये लोग को फोन करेंगे, बोलेंगे तो लोग फोन रख देगा, फोन फेंक के मारेगा, कोई पैसा नहीं देगा। तो सर क्योंकि मेरा एक क्योंकि पैसा देना अभी लोन जो है कोविड के बाद जो है बहुत ही मुश्किल है, लोग पैसा देते नहीं है। सो यू हैव टू सर अंडरगो द लोन हैसल्स। लोन हैसल्स में आपको आईटी फाइल, पी टैक्स, बैंक अकाउंट, ये सारे चीज देके 1.5-2 लाख लोन मिनिमम लेके यू कैन स्टार्ट सर ऑनलाइन। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ हेलो। हाँ बोलो। मेरे पास लगभग सोशल मीडिया में वीडियो बनाने के लिए सब कुछ मैं खरीद लिया हूँ, लेकिन कैमरा के सामने बोल नहीं पाता हूँ।
कैमरा के सामने आ नहीं पाता हूँ, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन ओके। यू इंस्टाग्राम में 25,000 फॉलोअर भी है, फिर भी कर वाओ। नहीं पाता हूँ। ये मोहम्मद, ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को है, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी है ये प्रॉब्लम। फिलहाल तो मैं कई हजार घंटा क्लास ले चुका हूँ, फिर भी वीडियो रिकॉर्डिंग करके क्लासेस नहीं लेता हूँ, बट आई विल स्टार्ट। माय स्टूडियो इज गेटिंग रेडी, सो आई विल स्टार्ट। ये थोड़ा सा हम लोग का साइकोलॉजिकल इशू है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बोल नहीं पाते, बट हम लोग बोल पाते हैं। हम लोग बोल पाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं, लेकिन कैमरे के सामने थोड़ा घबरा जाते हैं। ये कैमरा जब मेरा दोस्त बन जाएगा ना, इट विल बिकम माय फ्रेंड। यू हैव टू मेक कैमरा योर फ्रेंड, दोस्त। अनटिल एंड अनलेस यू मेक द कैमरा योर फ्रेंड ना, वो घुटन सा महसूस होगा, वो आप ओपन नहीं हो पाएंगे। और एक चीज है जो मैं बता देता हूँ। दो चीज होता है, एक फियर ऑफ सक्सेस और एक फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ सक्सेस मतलब मैं अगर कैमरा में आया, वीडियो में आया, तो मैं बहुत फेमस हो जाऊंगा। उसकी वजह से कुछ लोग नहीं करते हैं कि मैं फेमस हो जाऊंगा। और फियर ऑफ फेलियर मतलब मैं अगर करूंगा और अगर कोई लाइक नहीं आया, कोई शेयर नहीं हुआ, तो मेरा तो इज्जत खराब हो जाएगा। तो ये फियर ऑफ फेलियर है। ये दोनों के वजह से हम लोग कैमरे के सामने नहीं आ पाते हैं। और एक चीज है, हम लोग सोचते हैं कि मेरा फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, मेरे आसपास में जो लोग हैं वो वीडियो देख के पता नहीं क्या बोलेंगे, मेरे पेरेंट्स पता नहीं क्या सोचेंगे। ये सोच अगर दिमाग में है, देन ऑल्सो विल बी नॉट एबल टू ओपन अप इन फ्रंट ऑफ कैमरा। कैमरा के सामने ओपन होने के लिए आपको बाहर में जाए दुनिया, कैमरा ही मेरा दोस्त है और इसी को लेके जिंदगी गुजारना है। अगर आपने ऐसा सोच लिया जिस दिन, उस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे। तो ये पहले पहले थोड़ा फिर कोशिश रास्ते कर से रहा था, निकालना है। फिर पहले कोशिश कर रहा था, थोड़ा शॉर्ट वीडियो डाल डाल के फॉलोअर भी अच्छा हुआ था, जिम में जा पुशअप लगा के शॉर्ट वीडियो बना बना के छोड़ा था। फिर बाद में कैमरे के सामने आ नहीं पाता हूँ अभी, क्या हो फिर गया कैमरा मुझे के सामने पता आओ, नहीं चल रहा खुद है। प्रैक्टिस करो, वीडियो पहले डालो मत। पहले आओ, बातचीत करो कैमरा के साथ, उसका वीडियो देखो, उस देख के लगो मतलब कहाँ पे मेरा फॉल्ट हो रहा है, और फिर इसको करेक्शन करना है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये दुनिया में ना कोई भी चीज, कोई भी लोग परफेक्ट नहीं है। तो ऐसा मत सोचना कि तुम्हारा वॉइस या तुम्हारा प्रेजेंटेशन या तुम्हारा फेस देख के लोग नहीं सुनेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। कहाँ कैसे कौन सा चीज सुपरहिट हो जाए या उसमें फॉलोअर्स आ जाए, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। एक सिंपल गाना आपने देखा होगा, पदुबती पदुबती बोल के गाना है, जिसका कोई माँ बाप नहीं है, तो वो गाना पता नहीं कैसे हिट हो गया। तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आ, हम लोगों का शक्ल अच्छा नहीं है या थोड़ा हम लोग हकला जाते हैं बोलते हुए, तो वो कैमरा फ्रेंडली नहीं हुआ। ऐसा आप सोचना बंद कर दो, जो है बेसिक वो बोलो। और एक चीज मैं आपको सिखा देता हूँ, ये जिंदगी भर याद रखो। लोग जो है सोशल मीडिया देखते हैं दो तीन चीज कारण से। एक तो है एंटरटेनमेंट, पहला सबसे सुपरहिट जो है वो है एंटरटेनमेंट। मतलब आप बादाम बादाम गाने पे अगर नाच पाए तो बहुत अच्छा है, ये पहला है एंटरटेनमेंट। एंड नेक्स्ट जो है वो है लर्निंग। लोग सीखना चाहते हैं नया जिन कुछ चीज। अगर आप लोगों को सिखा पाओ, पढ़ा पाओ, कुछ टॉपिक के ऊपर चीजें बता पाओ, देन आप हिट हो जाओगे। और एक चीज लोगों के ऊपर लोग बहुत देखते हैं, दैट इज नेगेटिव थिंग्स, उसमें हम लोग को जाना नहीं है। जैसे कोई ब्रिज से गिर गया, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, या किसी ने आत्महत्या कर लिया, ये सारे वीडियोस अट्रैक्ट करता है लोगों को, बट वो सब नेगेटिव है। तो हम लोग स्टिक रखेंगे एजुकेटर के हिसाब से, ट्रेनर के हिसाब से, लोगों को टीच करेंगे। जो ओरिजिनल है, जो अच्छा चीज है, जेन्युइन चीज है, वो सारे चीज टीच करेंगे। ये प्रैक्टिस करते रहो। मेरे ख्याल से अगर आपने 3 से 4 महीना प्रैक्टिस किया, यू विल गेट सक्सेस 100%। बट साथ में आपको सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन भी सीखना है, कैसे कीवर्ड लिखना है, डिस्क्रिप्शन कैसे डालेंगे, डिस्क्रिप्शन में क्या क्या कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड रहेगा,
ये सारी चीज भी आप सीख सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, ये सीख के करो। यूट्यूब में जब पोस्ट करो उसका डिस्क्रिप्शन पूरा अच्छे से लिखना, डिस्क्रिप्शन में ऑप्टिमाइज्ड कीवर्ड्स लिखना जो सर्च करते हैं लोग, हैशटैग सही से दो तो हो जाएगा। सो कमिंग बैक उसका, चलो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये सोशल मीडिया वाला, हम लोग बात करेंगे कभी इसके ऊपर। सो और एक चीज है, अगर आपको पैसा नहीं है तो आप मॉर्गेज लोन ले सकते हैं। मॉर्गेज लोन मतलब गोल्ड लोन, एलआईसी ये सब वगैरह जमा करके, किडनी जमा करके मत लेना। लोन लो तो गोल्ड लोन लो, एलआईसी लोन लो, ये सारे चीज लो। अगर गोल्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, किडनी है, तो मत देना किडनी। ठीक है, टाइम के लिए इंतजार करो। ओके, लास्ट इसका एक पॉइंट है कैश फ्लो मैनेजमेंट। कैश फ्लो मैनेजमेंट मतलब जो रियली तुम्हारे पास कितना पैसा आ रहा है और तुम कितना खर्चा कर रहे हो, कितना सेविंग कर रहे हो, और तुम्हारा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। तो अगर जहां पे आपको दिखे कि आपका कोई सेविंग नहीं है, जीरो सेविंग, उसका मतलब आपका इनकम कम है या आपका एक्सपेंसेस ज्यादा है। तो उसको आप कट ऑफ करो, कैसे करके मैनेज करो। आपका इनकम नहीं बढ़ेगा तो आपका कैश फ्लो बैलेंस नहीं होगा, बिजनेस भी फेलियर हो जाएगा, आप लाइफ में भी फेलियर हो जाओगे। तो कैश फ्लो मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट जितने भी पॉइंट्स हैं, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स अपकमिंग है। मैं आप लोगों को और एक लिंक अभी भेजता हूँ 5 मिनट के ब्रेक के बाद। हम लोग और थोड़ा इंटरेस्टिंग चीजें जैसे लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिपेंडेंस, एलआईसी, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म प्लान, एफडीज, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एटीसी, एटीडी, इसके बारे में जानेंगे, जो आप लोगों को थोड़ा बहुत पता है और पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, सो लाइबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं थोड़ा बोल देता हूँ आपको, 1 मिनट है। लाइबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपके लाइफ में क्या लाइबिलिटी है। पापा को देखना है, मम्मी को देखना है, घर पे पैसा देना है, लोन चुकाना है, ये सब लाइबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब फिजिकल एंड मेंटल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका कमिंग 5 इयर्स में, वो भी आपको सोचना है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट आपको भेजता हूँ लिंक, उसमें हम लोग इसमें थोड़ा सा डिटेल्ड फोकस करेंगे। ओके, ठीक है। ओके सर, ओके।